نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ بخاری شریف کا درس ہوگا اور حدیث نمبر 4 کا ترجمہ ہوگا اور اس کی تشریح ہوگی۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ اس کی مطلب اور تشریح دیکھی جائے گی۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔ یہ ہو گئی حدیث نمبر 4 کی عبارت۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کو بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو خبر دی ابو عوانہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے بیان کیا موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو بیان کیا سعید بن جبیر نے، اور انہوں نے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں۔ لا تحرک به لسانک، آپ قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو زیادہ حرکت مت دیجئے، لتعجل به تاکہ آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت سخت مشقت برداشت کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور حضور اکثر اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، تو میں دونوں ہونٹوں کو تیرے سامنے ہلاتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہلاتے تھے۔ وقال سعید، اور سعید بن جبیر نے فرمایا انا احرکہما، میں دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسا کہ میں نے کما رأیت، جیسا کہ میں نے ابن عباس کو دونوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فحرک شفتیہ، تو سعید بن جبیر نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی، ان کو ہلایا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قال ابن عباس نے فرمایا جمعہ لک صدرک وتقرؤہ، ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو تیرے لیے تیرا سینہ جمع کر لے گا اور اس کو پڑھا دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس قرآن کو پڑھ لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کی اتباع کیجئے۔ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، پھر ہم پر لازم ہے اس کو پڑھوانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی حضرت جبرائیل ان کے پاس تشریف لاتے استمع، تو غور سے سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرِيلُ، پھر جب حضرت جبرائیل واپس چلے جاتے
क़रअहु नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़रअहु, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़ते, वही को पढ़ते जैसा कि हज़रत जिब्राइल ने उसको पढ़ा। ये हो गया हदीस का तर्जमा, इबारत भी हो गई और तर्जमा भी हो गया। बाब चल रहा है बाबू बदइल वही, और किताब चल रही है किताबुल वही। वही के ताल्लुक से अहादीस चल रही है। इस हदीस में भी, हदीस नंबर 4 में भी वही का तज़किरा है। इस हदीस की तशरीह देख लेते हैं। पहले बात तो ये समझना चाहिए कि इमाम बुखारी इस हदीस शरीफ को अपनी किताब बुखारी शरीफ में 4 जगह लाए हैं। एक तो यही हो गया किताबुल वही में, एक लाए हैं इसको किताबुल तफसीर में, जब तफसीर करने का मौका आया इस आयत की ला तुहर्रिक बिही लिसानका। एक आया है फ़ज़ाइल कुरान में, और एक जगह इसको लाए है किताबुत तौहीद में। 4 जगह हो गई जहां इमाम बुखारी इस हदीस शरीफ को लाए हैं। इस हदीस शरीफ में क्या है, हज़रत इब्न अब्बास से ये हदीस मनकूल है, और इनके शागिर्द है सईद इब्न जुबैर। सईद इब्न जुबैर ने इब्न अब्बास से सुनी, और इब्न अब्बास ने इस हदीस को बयान किया। क्या है इस हदीस का मफहूम और मतलब, कि इब्तिदाई ज़माने में जब हुजूर पर वही उतरती थी, अब हज़रत जिब्राइल वही ला रहे, जब अल्लाह का पैगाम कुरान और अल्लाह का कलाम हज़रत जिब्राइल हुजूर को सुनाते, तो हुजूर भी हज़रत जिब्राइल के साथ साथ पढ़ते। जैसा वो बोल रहे ऐसा हुजूर पढ़ते जा रहे साथ साथ। क्यों हुजूर ऐसा इसलिए करते थे, ताकि जब हज़रत जिब्राइल मुझे अल्लाह का कलाम सुनाकर वापस चले जाए तो मैं इस वही को भूल न जाऊं, तो उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते कि कहीं कोई बात छूट न जाए, कोई बात रह न जाए। हज़रत जिब्राइल तो चले जाएंगे, फिर किससे पूछूंगा अगर मेरे जहन से कोई बात निकल गई। तो याद करने की नियत से हुजूर जल्दी जल्दी हज़रत जिब्राइल के साथ साथ ही पढ़ते थे। अब हुजूर को इसमें बड़ी मशक्क़त होती थी। कैसी मशक्क़त, एक तो साथ साथ पढ़ने की मशक्क़त, फिर वही नाजिल होने की मशक्क़त। पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हदीसों में आ चुका है कि वही उतरने की वजह से हुजूर की तबीयत पर मशक्क़त होती थी और बोझ होता था, तो उसकी मशक्क़त। और तीसरे उसके मानी में गौर करने की मशक्क़त। ये 3-4 मशक्क़त एक साथ इकट्ठी हो जाती थी। तो हुजूर को ऐसा करने के लिए, तो हुजूर को ऐसा करने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई। क्या कहा अल्लाह ताला ने, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बि इन्न अलैना जमअहु व कुरआना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। ये आयत नाजिल फरमाई कि देखो हज़रत जिब्राइल के साथ साथ आप ना पढ़ा करो, आपको इतनी मशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम वही को नाजिल कर रहे हैं, हम शरीयत को नाजिल कर रहे हैं, तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। कैसे, आप तो बस हज़रत जिब्राइल को पहले गौर से सुन लिया करो, बाद में पढ़ लिया करो, साथ साथ ना पढ़ा करो। हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे, एक तो हम इसको आपके सीने में जमा कर देंगे, महफूज कर देंगे, आप भूल नहीं सकते। फिर आप इसको बाद में पढ़ना चाहे तो आपसे पढ़वा भी देंगे हम, और लोगों के सामने अगर इसको बयान करना चाहे, तशरीह करना चाहे तो बयान भी करवा देंगे। तो याद कराना भी हमारे जिम्मे, पढ़ाना भी हमारे जिम्मे, और लोगों के सामने पढ़वाना भी हमारे जिम्मे। आप इतनी मशक्क़त ना उठाओ, वही की हिफाजत करना हमारे जिम्मे है। अब उसके बाद क्या हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बाद जब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि आप साथ साथ पढ़ने की मशक्क़त ना करो, तो अब उसके बाद हुजूर क्या करते कि जब भी हज़रत जिब्राइल आते तो पहले कुरान को और वही को गौर से सुनते, उसके बाद जब हज़रत जिब्राइल वही नाजिल करके उतार करके चले जाते, फिर उसके बाद पढ़ते, उसको याद करते, जैसा हज़रत जिब्राइल ने पढ़ा था और हुजूर के सामने वही नाजिल की थी, जैसे हज़रत जिब्राइल ने पढ़ा था फिर उसी तरह बाद में पढ़ते, फिर साथ साथ पढ़ना हुजूर ने बंद कर दिया। अच्छा, ये हो गया हदीस का मफहूम और मतलब। यहाँ एक बात और है बीच में हदीस शरीफ में, ये हदीस बयान की इब्न अब्बास ने, और इब्न अब्बास ने बयान की सईद इब्न जुबैर के सामने।
सईद इब्न जुबैर ने फिर अपने शागिर्दों के सामने इस हदीस को बयान किया। शागिर्दों में मूसा इब्न अबी आयशा भी है और भी है। जब ये हदीस सईद इब्न जुबैर ने अपने शागिर्दों को सुनाई बताई तो साथ साथ ये भी बताया कि देखो, जब ये हदीस इब्न अब्बास ने हमारे सामने बयान की थी तो हुजूर कैसे होंठ हिलाते थे, इब्न अब्बास ने हमारे सामने होंठ हिला के दिखाए थे। इब्न अब्बास ने सईद इब्न जुबैर अपने शागिर्द के सामने हिलाकर दिखाए थे कि हुजूर ऐसे ऐसे होंठ हिलाया करते थे। ठीक है। फिर सईद इब्न जुबैर ने भी अपने शागिर्दों के सामने इसी तरह होंठ हिलाए जिस तरह इब्न अब्बास ने होंठ हिलाए थे हुजूर की तरह। ठीक है। तो हुजूर ने होंठ हिलाकर दिखाए इब्न अब्बास को, इब्न अब्बास ने होंठ हिलाकर दिखाए अपने शागिर्द सईद इब्न जुबैर को, और सईद इब्न जुबैर ने होंठ हिलाकर दिखाए अपने शागिर्दों के सामने। सईद इब्न जुबैर ने किस तरह होंठ हिलाए, जैसे इब्न अब्बास ने हिलाए थे, और इब्न अब्बास ने सईद इब्न जुबैर के सामने कैसे हिलाए, जैसा कि हुजूर ने हिलाए थे। ठीक है। और इस तरह की हदीसों को हदीस मुसलसल कहा जाता है। किस तरह की हदीसों को, जिसमें कोई हरकत हुजूर से नकल दर नकल शागिर्दों में मुंतकिल होती चली गई। चुनाचे जैसे यहाँ एक हरकत है, हुजूर ने होंठ हिलाए, तो वही होंठ हिलाने की हरकत और नकल इब्न अब्बास ने की अपने शागिर्दों के सामने, और इब्न अब्बास ने अपने शागिर्दों के सामने सईद इब्न जुबैर के सामने, और सईद इब्न जुबैर ने अपने शागिर्दों के सामने। ये होंठ हिलाने का जो सिलसिला है, ये नकल है, इसको कहते हैं हदीस मुसलसल। चुनाचे ये हदीस मशहूर हुई है मुसलसल बितहरीकी शफ़तैन। और हमने ये हदीस पढ़ी थी शेख यूनुस साहब ने। शेख यूनुस साहब ने भी हमारे सामने होंठ हिलाकर दिखाए थे, ऐसे ऐसे होंठों को हरकत दी थी। मैंने भी आपके सामने इसी तरह होंठ हिला दिए हैं, जैसे हमने अपने उस्ताद शेख यूनुस साहब रहमहुल्लाह को देखा है। तो ये हदीस है मुसलसल बितहरीकी शफ़तैन। ये हो गया हदीस का मफहूम। अब यहाँ कुछ इश्काल है और कुछ अल्फाज की तशरीह है। पहले 2-3 इश्काल सुन लीजिए। इश्काल क्या है, ये हदीस इब्न अब्बास ने नकल की है डायरेक्ट हुजूर से। हजरत इब्न अब्बास पैदा हुए हिजरत से 3 साल पहले, और इस वही का ताल्लुक है इब्तिदाए वही से, शुरू ज़माने से, क्योंकि शुरू ज़माने में ऐसा ही होता था। हजरत जिब्राइल वही लाते और हुजूर उसको याद करने के लिए मशक्क़त उठाते। फिर अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, इस आयत से। तो हजरत इब्न अब्बास तो हुजूर से नकल कर रहे हैं, जबकि हजरत इब्न अब्बास की पैदाइश हुई हिजरत से 3 साल पहले, और जबकि ये आयत और इस आयत का ताल्लुक, इस हदीस का ताल्लुक तो शुरू से है, शुरू ज़माने से। तो इब्न अब्बास ने हुजूर से कैसे नकल कर दिया? उस वक्त तो इब्न अब्बास थे ही नहीं, दुनिया ही में नहीं थे। इसके 2 जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि इब्न अब्बास ने हुजूर से डायरेक्ट ना सुना हो, हुजूर को डायरेक्ट ना देखा हो, किसी सहाबी से, दूसरे सहाबी से सुना हो, और इब्न अब्बास ने उन सहाबी का वास्ता छोड़ दिया हो। ये मुमकिन है। इस सूरत में यह हदीस मुरसल बन जाएगी। हदीस मुरसल किसे कहते हैं? जिस हदीस को हुजूर से नकल करे और बीच में किसी वास्ते को, किसी सहाबी को छोड़ दे, किसी सहाबी के वास्ते को छोड़ दे, उस हदीस को हदीस मुरसल कहा जाता है। तो ये हदीस मुरसल हो गई। लेकिन ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं कि मुस्नद अबू दाऊद तयालसी में है कि हजरत इब्न अब्बास ने इस हदीस को साफ साफ सुना है। वहाँ भी इस हदीस को नकल किया गया। इब्न अब्बास के वहाँ अल्फाज क्या है? फ़अना उहर्रिकु लका शफ़तैया कमा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहुमा। मुस्नद अबू दाऊद तयालसी में यह हदीस आई है, और वहाँ साफ साफ इब्न अब्बास ने क्या कहा? कमा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों होठों को हरकत देते हुए देखा है। तो अब क्या जवाब बनेगा? जवाब ये बनेगा कि अगरचे इब्न अब्बास इब्तिदाए वही के ज़माने में नहीं थे, लेकिन फिर किसी वक्त हुजूर ने इब्न अब्बास के सामने इस बात को बयान किया हो।
کسی وقت بعد میں جب ایمان لے آئے، جب پیدا ہو گئے اور حضور کی مجلس میں ابن عباس کسی وقت بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے یہ ابتدا کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو شروع زمانے میں ایسے ایسا ہوا کرتا تھا۔ جیسا ہوتا ہے آدمی، جب آدمی اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو پرانی باتیں بتلاتا ہے کہ بھئی پہلے تو ایسا ہوتا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا۔ تو کسی وقت حضور نے ابن عباس کے سامنے اپنا ابتدائی وحی کا یہ واقعہ بیان کیا ہو، اس صورت میں حدیث مرفوع ہی ہو جائے گی، مرسل نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہاں کسی صحابی کا واسطہ نہیں چھوٹا ہے، ڈائریکٹ ابن عباس نے حضور سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ابن عباس نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی ساتھ ساتھ تفسیر بھی بیان کی ہے۔ حدیث کا مفہوم تو میں نے بتلا دیا، لیکن اس حدیث میں ایک آیت بھی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو ابن عباس نے جگہ جگہ اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ، بہ میں ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ اب اشکال یہاں یہ ہے کہ بہ کی ہی ضمیر کا مرجع قرآن کی طرف کیسے لوٹا سکتے ہیں، جبکہ پہلے تو لفظ قرآن آیا بھی نہیں۔ بھئی ضمیر کا مرجع وہیں تو لوٹانا چاہیے جہاں پہلے اس کا ذکر بھی آ گیا ہو مرجع کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مرجع آتا ہے، بعد میں اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے، لیکن اگر سیاق و سباق سے مرجع معلوم ہو تو پھر صاف صاف مرجع کا ذکر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ لتعجل بہ اور لا تحرک بہ میں ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، کیونکہ سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ تذکرہ قرآن کا چل رہا ہے، تو اب لفظ قرآن کا آنا یہاں ضروری نہیں ہے، ضمیر کے مرجع کا صاف صاف عبارت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ عبارت پڑھنے والے، عربی جاننے والے بالکل جانتے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مشکل کوئی سوال جواب نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ بہت ساری جگہ کتابوں میں ضمیر کا مرجع ہوتا ہے اور مرجع صاف صاف پہلے عبارت میں آیا بھی نہیں ہوتا، قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے۔ قرآن میں ہے خود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو انزلناہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے، جبکہ اس صورت میں کہیں پہلے قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، یعالج معالجہ سے ہے، عالج یعالج معالجتا، ببانا مشقت برداشت کرنا۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے شدتا، شدت کے معنی بھی مشقت برداشت کرنا۔ شدتا یہ یعالجو کی تاکید کے لیے ہے، اور یہ ترکیب میں مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اصل عبارت ہے یعالج من التنزیل معالجتا شدتا، یہ مفعول مطلق ہے۔ وکان مما یحرک شفتیہ، وکان مما، مما یہاں ربما کے معنی میں ہے اور ربما یہاں کثیرن کے معنی میں ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا کیا تھا، اور حضور اکثر اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ وکان مما یحرک شفتیہ، یہاں بھی ایک اشکال ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اشکال کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہی یاد کرنے کی نیت سے کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے، مما یحرک شفتیہ، حضور اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ اشکال یہ ہے کہ وحی کے اکثر الفاظ ہونٹ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ بھئی کوئی بھی آیت لے لو، اکثر جو حروف ہے وہ صرف ہونٹ سے نہیں ہوتے، کچھ ہونٹ سے ہوتے ہیں، کچھ زبان سے ہوتے ہیں، اور کچھ حلق سے ادا ہوتے ہیں، بلکہ بعض حروف تو ایسے ہیں کہ جس میں ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور یہاں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، کہ جو وحی نازل ہوتی تھی حضور صرف ہونٹوں کو ہلاتے تھے، حالانکہ کوئی بھی وحی ایسی نہیں ہے کہ جس میں صرف ہونٹ ہلانے کی ضرورت پڑتی ہو، ہونٹ کے ساتھ ساتھ زبان بھی تو ہلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ جب متعدد چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، متعدد چیزیں ذکر ہو، تو ان میں سے ایک کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ تو
हुजूर होंठों को भी हिलाते थे, जुबान को भी हिलाते थे, लेकिन यहाँ इब्न अब्बास ने सिर्फ होंठों को जिक्र किया। होंठ को जिक्र करने का मतलब ये नहीं कि जुबान नहीं हिलाते थे, जुबान भी हिलाते थे, लेकिन सिर्फ होंठ हिलाने के जिक्र करने पर इक्तिफा किया है। और ऐसा हमारी बोल चाल में बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें बयान करनी होती है लेकिन एक ही बयान कर देते हैं। एक जवाब तो इसका ये हो गया। दूसरा जवाब ये है कि ये हदीस इब्न अब्बास से बहुत सारी किताबों में जिक्र की गई है। खुद इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में इसको 4 जगह जिक्र किया है, और बाज रिवायतों में, बाज किताबों में यहाँ मिम्मा युहर्रिकु शफतैहि व लिसानहु, शफतैन के साथ साथ लिसान का भी जिक्र है। अब जब दोनों का जिक्र हो गया तो इश्काल वाली कोई बात नहीं रही। अच्छा, ये इश्काल और जवाब था, ये इस हदीस की इबारत है वकाना मिम्मा युहर्रिकु शफतैहि। यही इश्काल और जवाब कुरान की आयत पर भी होगा। कौन सा? ला तुहर्रिक बिही लिसानक। अल्लाह ताला ने हुजूर को जुबान हिलाने से मना किया, हालांकि वही में और अल्फाज की अदायगी में सिर्फ जुबान की जरूरत नहीं होती, होंठों की भी जरूरत होती है। तो जो जवाब और इश्काल यहाँ था वही इश्काल और जवाब आयत में भी है। फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़अना उहर्रिकुहुमा लका कमा काना। अच्छा, इबारत देख लीजिए। क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिजु मिन तंज़ीली शिद्दतन व काना मिम्मा युहर्रिकु शफ़तैहि। यहाँ तक इस इबारत का ताल्लुक हो गया आयत से, ठीक है, यानी उसका मजमून जो है आयत से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से फ़क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, यहाँ से लेकर फ़हर्रका शफ़तैहि, ये जुमला मुअतरिज़ा है, इसका ताल्लुक आयत से और हदीस से नहीं है। मतलब न तो इस इबारत में हुजूर का कोई कलाम है, न आयत की कोई तफसीर है, बल्कि वो जो मैंने बतलाया था ना कि मुसलसल बितहरीकी शफ़तैन, उसका जिक्र है। फ़क़ाल इब्न अब्बास, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया फ़अना उहर्रिकुहुमा लका, मैं दोनों होठों को हरकत देता हूँ तेरे सामने। लका का मतलब है सईद इब्न जुबैर, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हरकत देते थे। वक़ाल सईदुन, और सईद इब्न जुबैर ने फरमाया अना उहर्रिकुहुमा। सईद इब्न जुबैर ने किससे फरमाया? अपने शागिर्दों के सामने। और सईद इब्न जुबैर ने फरमाया कि मैं उन दोनों को हरकत देता हूँ, जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को मैंने उन दोनों को हरकत देते हुए देखा है। फ़हर्रका शफ़तैहि, तो उन्होंने अपने दोनों होंठों को हरकत दी। हर्रका का फ़ाइल है सईद इब्न जुबैर। फ़अंज़लल्लाहु तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ये हो गई कुरान की आयत। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ये अल्लाह ताला ने हुजूर को मना फरमाया और इसमें उस मना का जिक्र है। आप कुरान के साथ साथ अपनी जुबान को हरकत न दीजिए, लितअजल बिही, ताकि आप उसको जल्दी जल्दी याद कर ले। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, बेशक हम पर लाजिम है उसको जमा करना और उसको पढ़वाना। काला, ये तो हो गई कुरान की इबारत, कुरान की आयत। अब काला से ये इब्न अब्बास की इबारत है, और इब्न अब्बास इसकी आयत की तशरीह करना चाह रहे हैं। तशरीह कौन से जुमले की? शुरू वाले जुमले की नहीं, कुरान के आखिर में आयत ना, आयत के आखिर में आयत ना इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, तो जमअहु व कुराना की तफसीर कर रहे इब्न अब्बास। काला जमअहु, काला का फाइल इब्न अब्बास, जमअहु लका सदरुका व तक़रअहु, जमअहु लका, यहाँ ये तफसीर है जो इब्न अब्बास फरमा रहे हैं। यहाँ 2 तरह की इबारत है। जमअहु, मीम का फतह और आइन का फतह, ये माजी का सीगा हो जाएगा, और सदरु का इसका फाइल हो जाएगा। अब तर्जमा क्या होगा? इसको तेरा सीना जमा कर लेगा, तेरा सीना जमा कर लेगा। सीना जमा करने का मतलब है अल्लाह ताला सीने में जमा कर देंगे। हकीकी फाइल तो अल्लाह ताला है, जमा कराने वाले, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने मजाजी तौर पर सदरुका की तरफ इसकी निस्बत कर दी और फाइल उसको बना दिया। तेरा सीना इसको जमा कर लेगा का मतलब है तेरे सीने में अल्लाह ताला इसको जमा करा देंगे। और दूसरी इबारत है यहाँ पर
जमउहु, मीम का सुकून और आइन का रफा। अब यहाँ जमउहु ये मस्दर हो जाएगा और हु ज़मीर इसका मुज़ाफिल हो जाएगा। जमउ मस्दर की इजाफत मफऊल की तरफ होगी और सदरु का अब भी मरफूई होगा जमउन मस्दर का फाइल होने की वजह से। तो इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की जमाअहु लका सदरुका व तक़राउ, मतलब ये है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इसको याद ना किया करें, हमारे ज़िम्मे है तुम्हारे सीने में इसको याद करना, महफूज करना और बाद में इसको पढ़वाना। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, फिर जब हम इसको पढ़ ले तो आप भी उसके इत्तिबा कीजिए। ये भी कुरान हो गया, कुरान की आयत। अब इब्न अब्बास इसकी तफसीर कर रहे हैं, क्या? क़ाल फ़स्तमि लहू व अंसित, क़ाल का फ़ाइल है इब्न अब्बास। इब्न अब्बास ने फरमाया इसकी तफसीर में कि फ़इज़ा क़रअनाहु, फिर जब हम पढ़ ले, हम पढ़ ले का मतलब हज़रत जिब्राइल पढ़ने वाले हैं असल तो, लेकिन चूँकि वो तो अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, पैगंबर है हज़रत जिब्राइल, तो चूँकि असल वही नाजिल करने वाले अल्लाह ताला है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत कर ली कि जब हम पढ़ लें, और हम पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे कारिंदे, हमारे नुमाइंदे हज़रत जिब्राइल पढ़ लें। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, हज़रत इब्न अब्बास ने क्या तफसीर की है? फ़स्तमि लहू, तो आप उसको गौर से सुने, व अंसित, और ख़ामोश रहे, और ख़ामोश रहे। ये हो गई इसकी तफसीर। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये भी कुरान की आयत। अब इसकी तफसीर करते हैं इब्न अब्बास, क्या? सुम्मा इन्ना अलैना अन तक़रअहु, फिर हम पर ज़रूरी है उसको पढ़वाना। ये हो गए कुरान की आयत और साथ साथ इब्न अब्बास ने जो उसकी तफसीर की है। अब यहाँ गौर से देखें, एक इश्काल है। इश्काल क्या है? इब्न अब्बास ने अल्लाह ताला के कलाम यानी कुरान की तफसीर की थी, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। इसकी तफसीर क्या की थी? जमअहु लका सदरुका व तक़रउहु, और फिर सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। इसकी भी तफसीर क्या की इब्न अब्बास ने? इन्ना अलैना अन तक़रअहु, जमअहु व कुरआना, इसकी तफसीर भी यही, और इन्ना अलैना बयाना, इसकी तफसीर भी यही। दोनों की तफसीर एक ही कर दी है। इसके दो जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि यहाँ किसी रावी से सहू हो गया। असल में अन तक़रअहु, ये ऊपर जमअहु व कुरआना की तफसीर है, और यहाँ इन्ना अलैना बयाना की तफसीर कुछ और थी। रावी को सहू हो गया और उसने ऊपर वाले लफ्ज़ यानी व कुरआना की तफसीर इन्ना अलैना बयानहु में जिक्र कर दी। तो ये किसी और रावी से सहू हो गया, और यहाँ कुछ और तफसीर थी इब्न अब्बास ने जो बयान की थी, और उसने गलती से ऊपर वाले लफ्ज़ की तफसीर नीचे वाले लफ्ज़ की तफसीर में बयान कर दी। और दूसरा जवाब यह है कि ऊपर जो लफ्ज़ आया था इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसकी तफसीर भी व तक़रअहु की है। इसका मतलब है पढ़वाना, यानी खुद फी नफ्सिही क़िराअत करवाना, इसका मतलब तो ये हो गया। और इन्ना अलैना बयाना, इसका तर्जमा है अन तक़रअहु, मतलब इसका मतलब है अन तक़रअहु, लोगों के सामने पढ़वाना। तो अगरचे बज़ाहिर दोनों की तफसीर एक ही लग रही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। जमअहु व कुरआना की जो तफसीर में अन तक़रअहु आया है, उसका मतलब है फ़ी नफ्सिही क़िराअत करवाना, हम उसको याद भी करा देंगे आपके सीने में, और फिर नफ्सिही उसकी क़िराअत भी करवा देंगे। और इन्ना अलैना बयानहु की तफसीर में जो अन तक़रअहु का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब है दूसरों के सामने और लोगों के सामने बयान करवाना, पढ़वाना। तो जब दोनों का मतलब अलग अलग हो गया, तो दोनों की तफसीर भी अलग अलग हो गई। अच्छा, यहाँ दो बातें और रह गई। एक तो इस आयत का रब्त मा बाद और मा कबल की आयत से ताल्लुक, और दूसरे इस हदीस का तर्जमतुल बाब से क्या ताल्लुक है, क्या मुताबकत है। पहली बात की तरफ चलते हैं। देखो, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी, ये सूरह क़ियामा की आयत है। सूरह क़ियामा में इस आयत से पहले भी क़यामत का जिक्र है कि क़यामत में ऐसा होगा ऐसा होगा, और बाद की आयतों में भी क़यामत का जिक्र है, लेकिन बीच में एकदम ये आ गई, अलग ही मजमून है इसका,
کہ بھائی اپنی زبان کو حرکت نہ دو، ایسے ایسے کرو. تو یہ تو ماں بعد سے اور ماں قبل سے اس کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں. کہاں قیامت کا ذکر اور کہاں ہونٹوں کو نہ ہلانے کا ذکر. تو اس کا اپنے ماں بعد سے اور ماں قبل سے کوئی ربط نہیں ہے. اچھا، اسی ربط نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ حضرات قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے. اور ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں تحریف ہونے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ آیت بے جوڑ ہے، اس کا یہاں کوئی جوڑ نہیں ہے. سورہ قیامہ میں یہ تو قیامت کا ذکر چل رہا ہے اور ایک دم بالکل الگ مضمون کے اپنے ہونٹوں کو نہ ہلائیے. یہ تو عجیب سی بات ہے. خدا کے کلام میں ایسا بے جوڑ پنا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے قرآن کریم میں. تو شیعہ حضرات نے اسی بے ترتیبی کی وجہ سے اس آیت کا انکار کیا ہے اور قرآن کریم میں وہ تحریف کے قائل ہے. لیکن علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. یہاں میں 2 جواب دیتا ہوں جو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بعض علماء نے فرمایا، جیسے امام رازی وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک مضمون بیان کر رہا ہے، مضمون بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ اور بیان کر دیتا ہے تنبیہ کے لیے، اور پھر جب وہ تنبیہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنے مضمون کو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو شروع کرتے ہیں. جیسے جو لوگ ٹیچر ہے، پڑھانے والے ہیں، استاذ ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، سبق چل رہا ہے، کسی طلبہ نے کوئی حرکت کی تو اپنا سبق روک کر اس کو کہتے بھائی ایسا نہ کرو، ایسا کر لو. اس کو سمجھانے کے بعد پھر کتاب کا جو مضمون ہوتا ہے، درس و تدریس ہوتا ہے، وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے. قیامت کا ذکر چل رہا تھا، اب حضور چونکہ ایسا کر رہے تھے کہ بار بار ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھ رہے تھے جس سے حضور کو مشقت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں منع کر دیا. منع کرنے کے بعد پھر جو پہلے سے مضمون چلا آ رہا تھا قیامت کا، پھر اس کو شروع کر دیا. تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس طرح کا کلام بیچ میں آ جانا یہ اہل کلام سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ نارمل سی بات ہے. یہ تو ہو گیا ایک جواب. دوسرا جواب مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں ربط ہے. کیسے؟ اس سے پہلے آیت آئی تھی یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهُ. خیری آیت ہے. تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، اس آیت کا مضمون کیا ہے کہ قیامت کے دن ما قدم وَأَخَّرَ، جو چیزیں مقدم کی انسان نے، وَأَخَّرَ، اور جو چیزیں مؤخر کی، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. یہ ہے قرآن کریم میں. ما قدم کا مطلب جو چیز بعد میں کرنے کی تھی اس کو پہلے کر دیا، مقدم کر دیا. اس کا حق مؤخر کرنے کا تھا، مقدم کر دیا. جو چیز شریعت کی طرف سے مؤخر ہے اس کو مقدم کرنا بھی گناہ ہے. جیسے نماز ظہر کی یا عشاء کی، کوئی بھی نماز ہو اپنے وقت پر پڑھنی ہے، لیکن ایک آدمی نے پہلے پڑھ لی، یہ غلط کیا، کیونکہ اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو اپنے وقت پر پڑھا جائے. اس نے وقت سے پہلے اس کو مقدم کر دیا، تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یہ بھی گناہ ہے. وَأَخَّرَ کا مطلب کیا تھا؟ جس چیز کو پہلے کرنا تھا اس کو بعد میں کر رہا ہے. جیسے نماز اپنے وقت پر پڑھنی تھی، اپنے وقت پر نہیں پڑھی، اس نے بعد میں پڑھی ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے، اس کو مؤخر کر دی. نماز کا حق تھا مقدم، لیکن اس نے اس کے حق کو چھوڑ کر اس کو مؤخر کیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، میں نے صرف ایک موٹی سی مثال سمجھا دی ہے. تو قیامت، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں ہر چیز کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ جس چیز کو مؤخر کرنے کا حکم تھا اس کو مقدم کر دیا، اس کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی، تم نے بعد والے کام کو پہلے کیوں کیا. اور جس چیز کو مؤخر کرنے کا حق تھا اس کو مقدم کرنے کا بھی سوال، حساب کتاب ہوگا. یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے. مطلب کہ دیکھو جب حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہو اس وقت نہ پڑھو، بلکہ ان کے جانے کے بعد جب وحی پوری ہو جائے
उस वक्त पढ़ो। तो गोया यहाँ हुजूर से एक गलती हुई है, जिस काम को मुअख्खर करना था उसको मुकद्दम कर दिया, याद करना था बाद में, वही के बाद, लेकिन हुजूर ने उसको याद कर रहे हैं साथ साथ, पहले ही कर रहे हैं, वक्त से पहले। तो ये आ गया मा कद्दमा के अंदर, जो कुरान की पहले आयत है ना, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा कद्दमा, तो जब कद्दमा के अंदर आ गया तो इसका आयत से रब्त पहले से जुड़ गया है, क्योंकि जो माकद्दमा के आमाल है, माकद्दमा की मिसालें हैं और माकद्दमा के अफराद है, उनमें से एक ये भी है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी, आयत का रब्त बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि अगरचे बज़ाहिर यहाँ रब्त नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है वो वाक़े में हो भी नहीं। एक चीज़ का होना है फिल वाक़े और एक चीज़ का है हमारी समझ में आना। तो अगर किसी के यहाँ रब्त समझ में नहीं आ रहा है तो ये उसकी अक़ल की और समझ की कमी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रब्त भी ना हो। बाज़ उलमा ने ये जवाब दिया है और भी इसके जवाबात है। तो यहाँ पहली बात तो हो गई इस आयत के ताल्लुक से। अब ये पूरी हदीस की तशरीह हो गई। अब हमें यहाँ रब्त ढूंढना है, मुताबकत ढूंढनी है। बाब चल रहा है बाबू बदइल वही और किताब चल रही है किताबुल वही। किताबुल वही के साथ मुनासबत इस हदीस शरीफ की बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि इसमें भी वही का जिक्र है, वही किस तरह नाजिल होती थी, वही के नुज़ूल का इसमें बयान है। लेकिन जो बाब है, बाब के साथ मुनासबत कैसे होगी, क्योंकि बाब तो चल रहा है बाबू बदइल वही, वही की शुरुआत का बाब, वही की शुरुआत कैसे हुई, वही की इब्तिदाई हालत कैसे थी। तो इसमें तो इब्तिदाई वही का जिक्र है ही नहीं इस हदीस शरीफ में, क्योंकि इस हदीस शरीफ का तो खुलासा भी बता दिया। तो बाबू बदिल वही से कहाँ मुनासबत हुई? उसका जवाब यह है कि इस हदीस में मजमून ये आया कि हुजूर जब वही नाजिल होती थी तो मशक्क़त बर्दाश्त करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वही की शुरुआत हुई गारे हिरा में, उस वक्त भी हुजूर ऐसा करते थे। तो मुनासबत हो गई। कैसे पता चला? अगर हुजूर को वहां अल्लाह ताला ने मना कर दिया होता तो आज मना ना करते, चूंकि अब तक मना नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अब तक ऐसा ही करते चले आ रहे थे और अब अल्लाह ताला ने आकर हुजूर को मना फरमाया है। तो बाबू बदिल वही से भी इसकी मुनासबत हो गई है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।